So this is the second part of the NDPS Act. It is the revision video. We all go to revise what the content we have to discuss, and we are going to revise all the content. Please see the thoroughly this video. And this is the topic narcotic drug and psychotropic substances. This is from the syllabus of BTE to the pharma second year, diploma second year. So the next slide is the Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 16 September 1985. This act has been published in the Parliament and in 1965. An act An act to be consolidate and amend the law relating to narcotic drug to make stringent provision uh, for the control and regulation of operations relating to narcotic drug and psychotropic substances, to provide for the forfeiture of the property derived from or used illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, to implement the provisions of the International Conventions on Narcotic Drug and Psychotropic Substances, and for matters connected therewith, be it enacted by Parliament in the 36th year of the Republic of India as follows.
Chapter 1 we are going to discuss or we are going to revise. The Chapter 1 preliminary short title extent and commencement. This act may be called the Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985. It extends to the whole of India and it applies also to all cities of the India of outside India, to all persons on ship and aircraft registered in India, wherever they may be. It shall come into force on such date 3 as the central government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different appointed and different provisions of this act, different state, and any such provisions to the commencement of this act shall be constructed in relation to any state as a reference to the coming into force of that provisions in that state. So the next one is definitions. There are some definitions in this act unless the context otherwise requires. Who called addict? Addict means a person who has dependence on any narcotic drug or substance. अगर हिंदी में समझे तो अडिक्ट मतलब होता है आदती। आदती ऐसे इंसान को कहा जाता है जिसको उस चीज की आदत पड़ गई हो, बिना उसके उसका काम ना चलता हो। वो आदत किसी भी चीज की चल पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है केवल ऐसी चीजों की जो नशीले पदार्थ होते हैं। नशीले पदार्थ होते हैं और शरीर में एक तरीके का नशा करते हैं, इससे शरीर सुस्त पड़ जाता है और इंसान को बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है। बस वो उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए बार बार उस नशे की तरफ भागता है। उसको बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं एडिक्ट या आदती या नशेड़ी। हिंदी में उसे ज्यादातर लोग नशेड़ी कहते हैं, लेकिन उसकी सही हिंदी आदती है। आदती मीन्स ऐसा व्यक्ति जो आदतन उस कार्य को करता है और उसको वो छोड़ नहीं पाता है चाह कर भी, क्योंकि जब उस चीज की उसे जरूरत पड़ती है तो उसका दिमाग, उसकी विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति उसे रोक नहीं पाती है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? आदती। तो आदती आपने बहुत सारे देखे होंगे। ड्रग एडिक्ट जैसे शराब के आदती होते हैं और किसी तरीके के अन्य नशों के आदती होते हैं, जिन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि हमें उस नशे को प्राप्त कर लेना है और उस नशे तक पहुंच जाना है। उनको हम क्या कहते हैं? आदती यानी एडिक्ट। So the second one is board. Board means the Central Board of Excise and Customs, constituted under the Board of Revenue Act. Board मतलब ऐसी एक संस्था जो बनाई जाती है सरकार द्वारा एक्साइज और कस्टम्स को अपना कंट्रोल करने के लिए। सेंट्रल बोर्ड होते हैं, इनको बनाया गया है रेवेन्यू एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग। 50 सेक्शन 54 जो है वो गवर्न करता है इस एक्ट को। बोर्ड का काम क्या? बोर्ड का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो इसमें रहेंगे और इनका काम क्या रहेगा? इनका काम ये रहेगा कि हम जो रूल बनाएंगे उसको फॉलो कराने के लिए और उसको रेगुलेट कराने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसके बारे में पूरी कंट्रोल रखने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियुक्त कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी नियुक्त कर सकती है, और इसको गवर्न किया जाता है रेवेन्यू एक्ट 1963 से। रेवेन्यू मतलब होता है कि जो चीज़ हम भारत सरकार को देते हैं वो उसके कलेक्शन एजेंट जो कलेक्ट करते हैं उसको कहा जाता है रेवेन्यू या अतिरिक्त धन। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ हेम्प यानी कैनबिस। फार्माकोग्नोसी में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं व्हाट इज हेम्प एंड व्हाट इज कैनबिस।
So here is not to be discussed everything about the cannabis, but here is discussing only the narcotic property of the cannabis. चरस चरस एक आम बोलचाल की भाषा है जिससे जो है लोग कहते हैं, होता ये रेजिन है। इस प्लांट का रेजिन रेजिन का मतलब ऐसा लसलसा या चिपचिपा पदार्थ जो इस पौधे द्वारा निकाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं रेजिन। और इस रेजिन का काम क्या होता है? रेजिन का काम होता है चीज़ों को संभाल कर रखना, जो निकलती हैं उसके द्वारा, वेदर इट वॉट एवर फ्रॉम फॉर्म, ये किसी भी तरीके का हो सकता है। ये क्रूड हो सकता है, प्योरीफाइड हो सकता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनबिस प्लांट एंड आल्सो इंक्लूड कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन एंड रेजिन नोन एज द हशीश ऑयल और लिक्विड हशीश। इसको और अलग नामों से जाना जा सकता है। जब हम इसे दूसरे तरीके की चीज़ों में बदल देते हैं तब इसे हम क्या कहेंगे? हशीश कहेंगे, या क्या कहेंगे? हशीश ऑयल, हशीश का तेल। अभी इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? अभी कह रहे हैं चरस। जब ये रेजिन को हम दूसरे तरीके से कंसंट्रेट कर देंगे, यानी उसकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे? हशीश कहेंगे। और अभी तक हम उसको क्या कह रहे थे? अभी तक हम उसको कह रहे थे अभी तक हम उसको क्या कह रहे थे? चरस कह रहे थे। लेकिन जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई तब हमने उसको क्या कहा? हशीश कहा। इस तरह से बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। आप इसको देखते रहिए लगातार। ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से, और ये इस वीडियो का काम है आपकी नॉलेज को इन्हांस करना, आपके सिलेबस को कवर करना। और इस लॉकडाउन में जो कोशिशें की जा रही हैं हमारी तरफ से, इसके द्वारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे से घर पे रहकर ही पढ़ाई कर पाएँ, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो कृपया इन सब चीज़ों को कायदे से नोट कर लें। तब तक के लिए मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपके बड़े काम की चीज़ है ये। इसको आप लिख भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपने सब नोट कर लिया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड दूसरी डेफिनेशन, यानी दूसरी परिभाषा, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं। ये है गांजा। गांजा, दैट इज द फ्लावरिंग और fruiting tops of the cannabis plant excluding the seeds and leaves when not accompanied by the tops। गांजा उस भाग को कहा जाता है पौधे के जिसमें फूले हुए भाग और फ्रूट लगने वाली फल लगने वाले टॉप को, जो कैनबिस प्लांट का जो फूल होता है, फूल के ऊपर का जो भाग होता है, उसको हम क्या कहेंगे? गांजा कहेंगे। जिसमें क्या क्या सम्मिलित नहीं है, जिसमें क्या क्या जुड़ा हुआ नहीं है, जिसमें उसका बीज, उसकी पत्तियाँ,
और जो चीज़ उसके टॉप्स पर दिखाई देती है ये सब उसके उसमें ना सम्मिलित हो, सिर्फ फ्लावरिंग्स को ही हम क्या बोलेंगे, गांजा बोलेंगे। बाय वट एवर नेम्स दे मेक वी नो डिस्टिंगेटेड एंड एनी मिक्सचर, और कोई मिक्सचर with or without any neutral material of any of the above forms cannabis or any drink prepared therefrom, they are called गांजा। किसी उसके द्वारा कोई भी अगर आप ड्रिंक बनाते हैं, कोई भी अगर आप पाउडर बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, गांजा बोलेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि पौधे का वही भाग लिया जाए जो इस परिभाषा में दिया गया है, तभी वो गांजा कहलाएगा। ऐसा नहीं कि हम पौधे का कोई भी भाग ले लें तो वो गांजा हो जाएगा, नहीं। गांजा के लिए हमें पौधे का वही भाग लेना है जो इस एक्ट के अनुसार परिभाषित किया गया है, अन्य किसी भाग को हम गांजा नहीं बोलेंगे। अब क्या है, कैनबिस प्लांट। व्हाट इज कैनबिस प्लांट? कैनबिस प्लांट एनी प्लांट ऑफ द जेनस कैनबिस, कैनबिस फैमिली से जुड़े हुए किसी भी प्लांट को क्या कहेंगे हम, कैनबिस प्लांट कहेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखाया जा रहा है? नेक्स्ट स्लाइड में और सारी डिफिनीशंस हैं, इनको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। प्लीज नोट डाउन ऑल द टॉपिक्स is given in the slide. After noting down this, we have all to discuss what are the definitions said. हम सरल से सरल भाषा में इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। रिवीजन पार्ट है, इससे पहले हम इसके बारे में अच्छे से बता चुके हैं। तो आपको इस वजह इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। इसको कृपया नोट डाउन कर लेंगे, इसमें साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको नोट करते रहिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे जो इसमें परिभाषाएं दी हुई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई कंपनियां। मीन्स फैक्ट्रीज ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, फैक्ट्रीज ओन्ड बाय द एनी कंपनी इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड एटलीस्ट 51%। अब सरकारी कंपनियां किसे कहेंगे? जिसमें 51% की भागीदारिता सरकार की होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? सरकारी कंपनियां कहेंगे। अर्थात वो कंपनियां जिनके अंश की, जिनके अंश में 50 से ऊपर यानी 51% का अंश पेड पर शेयर कैपिटल यानी उनकी जो कुल जमा पूंजी है उसका 50%, अगर 50% से ऊपर अगर सरकार के हक में होता है या सरकार के हाथ में होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं
सरकारी कंपनियां, सरकारी कंपनियों की क्या परिभाषा है? सरकारी कंपनियों की परिभाषा ये है कि ऐसी कंपनियां जिनका 51% के लगभग शेयर या अंश या जो उनकी कुल जमा पूंजी है उसका प्रतिशत का अगर हिस्सेदारी सरकार के पास होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहेंगे कि ये कंपनी सरकारी है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन, कोका डेरिवेटिव। कोका डेरिवेटिव मतलब कोका के द्वारा बनाए गए पदार्थ, उनको हम क्या कहेंगे? पहला है ए, क्रूड कोकीन, दैट इज एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ which can be used directly or indirectly for the manufacture of cocaine। कोकीन हम किसको कहेंगे? ऐसी कोका लीफ, कोका की पत्तियां जो जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोकीन के बनाने में यूज की जाती है या लगाई जाती है या बनाई जाती है, उन्हें कहेंगे हम क्या? कोका, उन्हें कहेंगे हम कोकीन। इजोकीन क्या है? इकोजिनिन, इकोजिनिन है, इकोजिनिन एंड ऑल द डेरिवेटिव ऑफ इकोजिनिन फ्रॉम विच इट कैन बी रिकवर्ड। इकोजिनिन के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले जो पदार्थ हैं या उसके संयोजक हैं उन्हें कहा जाएगा, सहयोगी है, उन्हें कहा जाएगा इकोजिनिन। कोकीन क्या है? कोकीन दैट इज अ मेथिल एस्टर ऑफ बेंजोइल, इकोजिनिन एंड दिस साल्ट। केमिकली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बेंजोइल इकोजीन का अगर कोई साल्ट है, साल्ट फॉर्म में अब मौजूद है तो उसको क्या बोलेंगे? कोकीन बोलेंगे। मेथिल एस्टर ऑफ बेंजोइल इकोजीन साल्ट कॉल्ड कोकीन। All the preparation contain one more than 0.1% of cocaine, that is called cocaine। कोका लीफ, कोका की पत्तियों का मतलब क्या होता है? The leaf of the coca plant except a leaf from which all ecogenin, cocaine and any other ecogenin alkaloid have been removed, they are called coca leaf। Then the second one is all mixture thereof whether with or without any natural material but does not include any preparation containing not more than 0.1% of cocaine are called coca leaves। These are the definitions related to the cocaine, coca leaves, auricogenine। So we have discussed the topic cocaine, cocaine and ecogenine thoroughly। This is the video for NDPS Act for students who have not seen all the videos. Uh, this is the revision video. I have discussed these all slides in the previous video, and I am here going to discuss the slides for only the revision part। So I am discussing in detail, in brief, Hindi और English also। हम इसे अच्छे से समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को पहली वीडियो देखकर समझ में नहीं आया होगा, तो जो इस वीडियो को देख रहा है वो इसको अच्छी तरीके से समझ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो व्हाट आर द कोका प्लांट। पहले आप इस स्लाइड को अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। Please note down all the content of the slide, and after the noting down this slide, we have all to discuss what are the definitions are given in the slide।
हेलो हेलो So here we are going to discuss the remaining definitions. What is coca plant? Coca plant क्या होता है? Means the coca plant any species genus Fritho Frithuro कार्ड कोका प्लांट। फ्रिथोरोऑक्सिलोन जेनस के जो पौधे होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? कोका का पौधा कहेंगे। यानी कोका के पौधे किस जेनस के होते हैं? फ्रिथेरोऑक्सिलोन जेनस के होते हैं। अब क्या कहेंगे? अब एप्लीकेशन क्या है? अब डिफिनेशन क्या है अगली? कमर्शियल क्वांटिटीज। कमर्शियल माने होता है औद्योगिक, क्वांटिटी माने होता है मात्रा। औद्योगिक मात्रा हम किसे कहेंगे? इन रिलेशन टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस मीन एनी क्वांटिटी ग्रेटर देन द क्वांटिटी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट। अब ये कहना चाह रहे हैं कि ऑफिशियल गैजेट यानी सरकार ने एक पत्र, शपथ पत्र निकाल कर, एक पत्र निकाल कर, भारत के राजपत्र निकाल कर उस पर लिख कर दिया है कि इस मात्रा से अधिक मात्रा अगर आपके पास पाई जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? औद्योगिक मात्रा कहेंगे। मतलब मान लीजिए किसी चीज का हमने 5 ग्राम की मात्रा को माना है कि ये सामान्य इंसान या सामान्य लोग इसे ले सकते हैं या रखे रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आधा किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 50 किलो इस तरह से मिलता है, यानी उस 5 ग्राम की मात्रा जो सरकार ने अपने राजपत्र में निर्धारित की है उससे अगर 1 मिलीग्राम भी अधिक मिलता है तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा? कॉमर्शियल क्वांटिटी यानी औद्योगिक मात्रा के उसकी सीमा में आने लगेगा। तब हम उसको क्या कहेंगे? कॉमर्शियल क्वांटिटी। ठीक। अब क्या कहते हैं? अब अगली डेफिनेशन है कंट्रोल्ड डिलीवरी। कंट्रोल्ड डिलीवरी का मतलब मीन्स द टेक्निक अलाउइंग इलिक्ट और सस्पेक्ट कंसाइनमेंट ऑफ नार्कोटिक ड्रग, psychotropic substances, controlled substances, and substances substituted from them pass out or through or into the territory of India of the knowledge and under the supervision of any officer empowered in the behalf or duly authorized under section 58 with a view to identifying the person involved in the commission of an offense under this act। कंट्रोल डिलीवरी का मतलब सरकार ने जितनी चीज रेगुलेशंस बना रखे हैं उसके हिसाब से किसी सामान का जो एनडीपीएस एक्ट के तहत परिभाषित है अगर इधर से उधर होता है तो उसको क्या कहेंगे? कंट्रोल डिलीवरी। क्यों? क्योंकि इस डिलीवरी की सारी कंट्रोल्स किसके हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? कंट्रोल्ड डिलीवरी। अब क्या है? करस्पॉन्डिंग लॉ। करस्पॉन्डिंग लॉ मतलब
ऐसा नियम जो इसके तहत ज़्यादा आवश्यक हो, उसको क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग लॉ। मीन्स एनी लॉ करस्पॉन्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कॉल्ड करस्पॉन्डिंग लॉ। अब क्या है? कंट्रोल्ड सब्सटेंस। व्हाट आर द कंट्रोल्ड सब्सटेंस? कंट्रोल सब्सटेंस हम किन्हें कहेंगे? यानी नियंत्रित वस्तुएं किन्हें कहेंगे? नियंत्रित वस्तुएं वे वस्तुएं होंगी जो लिखा है इसमें, मीन्स that substance which the central government may have regard to the available information as to its possible use in the production of or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substance, or to the provision of any international convention by notification in the official gazette declared to the controlled substances. These are called controlled substances. अब हम आगे की स्लाइड में और चीजें डिस्कस करेंगे। प्लीज इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से समझाएंगे। नोट डाउन द टॉपिक। अब हम इन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला डिफिनेशन यानी पहली परिभाषा क्या कहती है? कन्वीनियंस मीन्स अ कन्वीनियंस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन व्हाट्स ओवर एंड इंक्लूड एनी एयरक्राफ्ट व्हीकल और वेसल। कन्वीनियंस मतलब ऐसी चीज जिसके द्वारा हम सामान इधर से उधर करते हैं या स्वयं को इधर से उधर कराते हैं, उसको जनरली कहते हैं कन्वीनियंस। अब इनके एनडीपीएस एक्ट के अनुसार कन्वीनियंस का मतलब होता है ऐसी चीज जो इस तरीके के पदार्थ को इधर से उधर ले जाती है, उसको क्या कहेंगे? कन्वीनियंस। अब है एसेंशियल नारकोटिक ड्रग्स, जरूरी नारकोटिक दवाएं क्या है? मीन्स नारकोटिक ड्रग नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द मेडिकल एंड साइंटिफिक यूज। वैज्ञानिक और मेडिकल यूज़ के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के यूज़ के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको क्या कहेंगे? एसेंशियल नारकोटिक ड्रग। अब है इलिक्ट ट्रैफिक। इलिक्ट ट्रैफिक का मतलब होता है इलीगल ट्रैफिक इन रिलेशन टू द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मीन्स कल्टिवेटिंग इन कोका प्लांट और गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ द कोका प्लांट। कोका प्लांट का कल्टीवेशन और उसको इकट्ठा करना क्या है? इलिक्ट ट्रैफिक है। इलिक्ट मतलब गैर कानूनी कार्य है। फिर है कल्टिवेशन ऑफ द ओपियम, पॉपी और कैनाबिस प्लांट। कैनाबिस प्लांट का कल्टीवेशन ओपियम पॉपी के थ्रू क्या कहलाएगा? इलिक्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्या है? इंगेजिंग इन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, possession, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कंसीलमेंट, यूज, these all are called illicit traffic. Use or consumption, import interstate, export interstate, import in info India, export from India and transshipment,
of Narcotic Drug and Substances called illegal, yeah, illicit traffic. So the next one is, please note down all the definitions, and we go to discuss these after the note downing the definitions. So I hope you all have noted down the topic. So we are going to discuss the topic, dealing any activity, narcotic drug and psychotropic substance other than those referred into subclass 1 and 2. Handling or letting out any premises
for the carrying of any of the activities referred to in subclause 1 to 4 other than those permitted under this act or any rule or order make or any conditions of any license term or authorization issued thereunder includes thereunder includes. International Convention means the single Convention of Narcotic Drug 1961 adopted by the United States Conference at the New York in March 1961. The protocol amendment amending the convention mentioned in subclass United Convention of Geneva 1972. The Convention of Psychotropic Substances 1971 adopted by the United Nations Conference of Vienna in February 1971 and the International Convention relating to narcotic drug and substances, which may be ratified or acceded by the India after the commencement of this act. Who is the manufacturer? मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, किसी चीज को बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। उस प्रोसीजर को कहते हैं मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर इन रिलेशन ऑफ narcotic drug and psychotropic substances include all processes that other than production which such drugs or substances may be obtained, they are called manufacture. ऐसी प्रक्रियाएं जो प्रोडक्शन में यूज होती हैं उनको क्या कहते हैं? रिफाइनिंग ऑफ सच ड्रग्स ऑफ सब्सटेंसेस। रिफाइनिंग मतलब उनको परिशुद्धता प्रदान की जाती है और शुद्ध किया जाता है, उनको भी क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चर कहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सच ड्रग्स, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक से दूसरे चीज में परिवर्तित करना, उनको भी मैन्युफैक्चर की कंडीशन में डालेंगे। मेकिंग ऑफ प्रिपरेशन, उनसे किसी चीज का निर्माण करना भी हमारा क्या किसके अंतर्गत आता है? मैन्युफैक्चर के अंतर्गत आता है। अदरवाइज देन in a pharmacy or prescription with or containing and such drugs or substances that are called manufacture. ये सब मैन्युफैक्चर माने बनाने की प्रक्रिया की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब इसको डिफाइन किया गया है एनडीपीएस एक्ट में। अब हम अगली परिभाषा को ध्यान से देखेंगे। मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स मीन्स ऐसी मैन्युफैक्चर्ड ड्रग किन्हें कहा जाएगा? ऑल कोका डेरिवेटिव। कोका डेरिवेटिव जो है उन्हें कहा जाएगा मैन्युफैक्चर्ड। मेडिकल कैनाबिस, मेडिसिनल कैनाबिस, ओपियम डेरिवेटिव एंड पॉपी स्ट्रॉ concentrate are called manufactured drug. Any other narcotic substance of preparation which the central government may having regard to the available information as to be nature to the discussion, these are called मेडिसिनल कैनाबिस। किसको कहेंगे? मेडिसिनल कहेंगे। इंडियन मेडिकल हेम्प को, मेडिसिनल हेम्प को क्या कहेंगे? मेडिसिनल कैनाबिस, जिसका टिंचर बनाया जाता है कैनाबिस के द्वारा। टिंचर एक तरीके का जो है औषधीय तरल होता है जिसे यूज किया जाता है ज़्यादातर होम्योपैथी में।
नारकोटिक कमिश्नर मीन्स द नारकोटिक कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5। इस एक्ट के सेक्शन 5 के अंतर्गत जो कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? नारकोटिक कमिश्नर। नारकोटिक ड्रग्स मीन्स द कोका लीफ, कैनबिस, हेम्प, ओपियम, poppy straw and include all manufactured drug. So please note down all the definitions. I am going to pause this video for a few minutes. Please note down all the video, all the content. I hope you all have noted down this topic. So the next definition we are going to discuss was the meaning of opium. The coagulated juice of the opium poppy and any mixture with or without any neutral material of the coagulated juice of the opium poppy, but does not include any preparation containing not more than 0.2% of morphine. Opium derivative means the medicinal opium, that is opium which has undergone the process necessary to adopt it for medicinal use in accordance with the requirement of the Indian Pharmacopoeia or any other pharmacopoeia notified in this behalf by the central government, whether in the powder from the granulated or otherwise as a mixed natural material. Prepared opium, that is any product of opium obtained by the any series of preparation designed designated to transform opium into an extract suitable for smoking, and the dross or the residue remaining after the opium is smoked. Uh, Canthorin alkaloid, namely morphine, codeine, thiamine, these all are the opium derivatives. Diacetylmorphine, that is an alkaloid also known as di and dimorphine or heroin. And the salts are preparation containing not more than 0.2% of the morphine or containing any this diacetylmorphine. These are called the opium derivatives. So please note down all the definitions given here.
So the next one is opium poppy means the plant of the species Papaver somniferum and the plant of any species of Papaver from which opium or any phenethylene alkaloid can be extracted and which the central government may by notification of the official gazette declare to be opium for the purpose of this act. These are called the opium. ओपियम पॉपी किसको कहेंगे? ऐसी फैमिली पापाविर सोमनीफेरम की स्पीसीज का अगर कोई पौधा है तो उसको क्या बोलेंगे? ओपियम पॉपी। और नोटिफिकेशन जो दिया गया ऑफिशियल गैजेट में गवर्नमेंट के द्वारा जो पत्र में बताया गया है उसी के हिसाब से हम ओपियम पॉपी की डिफिनीशन को डिफाइन करेंगे। और पॉपी स्ट्रॉ किसको कहेंगे? पॉपी स्ट्रॉ इज ऑल पार्ट एक्सेप्ट द सीड। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। पॉपी स्ट्रॉ उसको कहा जाएगा बीज को छोड़कर पूरे पूरे जो वो भाग है पौधे के उसको कहेंगे पॉपी स्ट्रॉ। पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट किसे कहेंगे? पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट कहेंगे जिसमें प्रोसेस कंसंट्रेशन के एल्कलॉइड का यूज किया जाता है उसको बोलेंगे पॉपी स्ट्रॉ। अब है प्रिपरेशन किसकी? इन रिलेशन टू द नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस मीन एनी वन और मोर सच ड्रग्स और substances in dosage form or any solution or mixture in whatever physical state containing one or more such drugs or substances, they are called preparation। ऐसी चीजें जो इन सब चीजों से बनाई जाएंगी उनको क्या कहेंगे हम? प्रिपरेशन या तैयार चीजें कही जाएंगी। अब प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? प्रेस्क्राइब्ड मींस रूल्स अंडर मेड इन दिस एक्ट, दे आर कॉल्ड प्रेस्क्राइब्ड। प्रोडक्शन किसे कहेंगे? मींस सेपरेशन ऑफ ओपियम, पॉपी स्ट्रॉ, कोका लीव्स और कैनबिस फ्रॉम द प्लांट्स इन द एफ्रेंट। अब आप इन सब डिफिनीशंस को नोट कर लेंगे और इसका अगला भाग, इसका मतलब आधा बचा हुआ जो स्लाइड है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये रिवीजन पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें जो चीज़ें आपसे छूटी होंगी वो समझ में आ जाएंगी अच्छे से और इसे आप पूरी तरीके से नोट कर लीजिए। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। Come on.